Hello everyone. Welcome to this session. This session is particular for the students doing their diploma in mechanical engineering from HP Takniki Shiksha Board, because I'm going to follow the syllabus that is prescribed by HP Takniki Shiksha Board. And as far as syllabus is concerned, we have 7th chapter, fundamentals of heat treatment. Okay. So here we are going to discuss the basics and details of heat treatment. Okay, but before going into details, we have to have information knowledge about this crystal structure, unit cell, crystal defect, grains, grain boundaries, nucleation, and grain growth, because it was not in a part. It is not in the syllabus as prescribed by board. Okay. So to have a clear understanding or a better understanding of heat treatment, we should have good knowledge about these 6-7 small topics. Okay, because they are basic only. Okay, so first we will cover these 6-7 small topics. Then after we will go to fundamentals of heat treatment in next session. Okay, so first topic is crystal structure and unit cell. Okay. So what is crystal structure and what is unit cell? Actually, the thing is, heat treatment is mostly concerned with metals, and heat treatment is mostly performed on metals. Okay, and metals are mostly crystalline, and crystalline metals. Why they are called crystalline? Because they have crystalline structure. Okay, so what is this crystalline structure? Okay, so we will going to have some knowledge about it. Okay, so consider this material. We have metal aluminium. Okay, we have metal aluminium. So how it is formed, how aluminum is formed? Okay, so you see, every material is made up of some atoms. Okay, we are going to consider it here as aluminium. Okay, so consider this diagram. Aluminum is made up of number of aluminum atoms. Okay, so all the aluminum atoms are going to form bond with each other. Okay, they are going to form bond with each other, and after forming some bond, they will have some basic structure. They will make some basic structure, and that basic structure will going to add up and going to repeatedly add up themselves to form a big structure, है ना? कि हर एक पार्टिकल जो होगा एल्यूमिनियम का, वो आपस में बॉन्डिंग बनाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, जैसे हमारा ईंट होती है, ईंट हम बनाते हैं, ईंट के साथ हम उसकी पेयरअप करते हैं तो हमारा एक पिलर बन जाता है. वैसे ही क्या होता है, हर एक एटम अपना क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनाएगा हर एक एटम से और एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. ओके, बट क्या है कि ये जो एक स्मॉलेस्ट जैसे पिलर है, अब नंबर ऑफ पिलर्स बनते हैं तब जाके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरी बिल्डिंग बनती है. इन द सेम वे एटम्स दे विल लिंक ईच अदर एंड फॉर्म अ दैट बेसिक स्ट्रक्चर. एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है. वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम जैसा होता है, और वो रिपीट होगा बार बार. वो जब रिपीट होगा, बार बार एडअप होगा, फिर जाकर एक बड़ा मटेरियल बन जाता है. ओके, सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, द बेसिक स्ट्रक्चर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज हियर, एंड इट इज़ यहाँ पर आपका बेसिक सा लिखा गया है दैट क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक फेस सेंटर्ड, हेक्सागोनल. ओके, एग्जाम्पल्स आर आल्सो गिवन like Fe, vanadium, chromium, aluminium. Like aluminum is having face centered structure. What does it mean? That यूनिट सेल, जो एक एल्यूमिनियम आप जो बार दिखाई दे रहे हैं, वो छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर से बना है जिसको हम बार बार रिपीट किया है. वो कौन सा स्ट्रक्चर है? FCC. ठीक है, फेज सेंटर्ड क्यूबिक. अभी हम नाम का डिस्कस कर, वी आर हियर ओनली डिस्कसिंग द नेम ओनली. ओके, आई विल गो फर्दर इन डिटेल्स. ओके, सो एक छोटा बेसिक स्ट्रक्चर से आपका क्या बना, एक क्रिस्टल बना जो आपका सेकंड है. तो उस क्रिस्टल को ही हमने क्या देखा, आगे एक बड़ा मेटल बार बन चुका है. ओके, सो व्हाट इज यूनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द क्रिस्टल अपॉन विच रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. रिपीट होगा बार बार, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाएगा. एक ऑर्डर अरेंजमेंट होगा मीन्स कि एक डेफिनेट पैटर्न होगा.
तो वहाँ से क्या बनता है, हमारा एक क्रिस्टल बनता है, जो कि आपके सेकंड डायग्राम देखा है। देखो इसमें अबाउट नंबर ऑफ थाउजेंड्स एटम होंगे, बट दी और इन सब में नंबर ऑफ यूनिट सेल भी होंगे, बट इस तरह लिंक्ड हैं कि ये आपस में नहीं लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है यहाँ पर। ओके, सो यही आपका क्या हुआ, यूनिट सेल हुआ। यूनिट सेल से देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्ट्रक्चर हमारा जो आप दिखाई देते हैं, आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा हो कैसा बना। सबसे पहले एटम हुआ, एटम से आपस में लिंक हुआ, और लिंक करके इन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, उसको हमने यूनिट सेल बोला। यूनिट सेल बार बार एडअप हुआ, फिर बना आपका क्रिस्टल। क्रिस्टल जब एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में बन गया, तो वहाँ से अब ये भी होता है कि क्रिस्टल एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। अब ऑर्डरली अरेंजमेंट कई बार होता है कि 3-4 सेट के आपके नंबर ऑफ सेट्स के आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक आपस में मिलके एक मटेरियल बना देते हैं। ओके, सो वो हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो डिफेक्ट्स का पार्ट है। ओके, सो बेसिक थिंग इज नाउ वी विल गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट सेल, this unit cell crystal structure, and that's it. Okay, so according to this crystal structure, it is what, it is a orderly arrangement of atoms, ions or molecules in a crystalline material. Orderly arrangement. Okay, the smallest group of particles means कोई स्ट्रक्चर बना दिया है पार्टिकल से मिलके in the material that constitutes this repeating pattern is unit cell, is unit cell. Okay, so before going into heat treatment, we should have the good knowledge of this crystal, what is crystal structure and what is unit cell. Okay, so unit cell is, okay, so and going into more details, unit cell, just as we have discussed here, basically as per research, as per once there was a researcher called Bevis, and according to Bevis we have 14 types of basic structures, कि जो मेटल होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, वो 14 ही तरीके के होते हैं। डिज़ाइन 14 तरह का ही उनका स्ट्रक्चर होता है। देखो वो कुछ भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है, जैसे आपका एग्जांपल है, देखो यहाँ क्यूबिक भी हो सकता है, मीन्स क्यूब होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, और लेंथ्स आर इक्वल। ओके, वो टेट्रागोनल भी हो सकता है, वो ट्राइगोनल भी हो सकता है, देखो किसी एंगल पे हो सकता है, वो ट्राइक्लिनिक भी हो सकता है, वो मोनोक्लिनिक भी हो सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है, बस इसकी जो एक्सिस की लेंथ है इक्वल है कि नहीं है, इनकी एक्सिस का एंगल है जो वो कितना है, 90 है, ये बिलो 90 है, ऑब्ट्यूज है, एक्ट्यूज। सो इन सभी कॉम्बिनेशन मिला के ये 14 टाइप के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। इन्हीं से क्या बनता है, एक क्रिस्टल बनेगा, और नंबर ऑफ क्रिस्टल बन के एक मटेरियल बना देंगे। ओके, सो basically we have only 14 type of Brevis lattice structures, lattice systems, and when they are repeatedly added together they form crystal. And basically one more thing, यहाँ पर जो है हमारे 3 हम बेसिकली पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट में। देखो आपने समझना है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपने जस्ट एक थॉरो हल्की सी ऊपर से एक नॉलेज रखनी है। सो हमें बस कंसीडर करना है कि एक बस ये कि डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, ट्राइटागोनल है, ट्राइगोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। बात हमने एक ध्यान रखनी है कि कौन सी एक होती है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। प्रिमिटिव यहाँ लिखा है, क्यूबिक कहाँ होगा, नीचे। सो दिस इज प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा, एटम्स आपके कॉर्नर पे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एटम्स अक्रॉस द कॉर्नर। ओके, कॉर्नर पे होंगे, और क्यूबिक क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे होंगे और एक्सिस लेंथ होगी। तो ये क्या आपने ये ध्यान रखना है कि प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। सेकंड वन इज दिस वन, सेकंड वन इज जो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, बीसीसी स्ट्रक्चर। कैसा, बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस इज क्यूबिक, दिस इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या डिफरेंस है, आई एम गोइंग टू जूम इट टू हैव अ गुड व्यू ऑफ बॉडी सेंटर्ड cell. This structure, there is an extra atom inside the this cubic box with the extra atoms across the corner. Okay, so in total we have 8 plus 1 9 number of atoms
that is inside, and that is a part of this unit cell. Okay, so we have 9 number of atoms. Okay, so let's count these number of atoms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Ninth in the center, so that's why it is called बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना. एक आपका जो एक एक्स्ट्रा एटम जो होगा वो आपका यूनिट सेल की बिल्कुल सेंटर में होगा, तभी आपका बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा, बॉडी centered. Okay, so next is face centered FCC structure. This face centered unit cell, this is face centered and we are studying here cubic, that's why this structure is called face centered cubic unit cell. Okay, I'm going to zoom it, I'm going to zoom here. Okay, so with the atoms across the corner, we have 8 number of atoms in FCC unit cell, we have 8 number of atoms in across the corner, and in we have extra 6 atoms across the face. See, cube possesses 6 number of surfaces and 6 number of side faces, and there will be one particle, one atom across these surfaces. Okay, so we have in total 8 number of atoms across the corner. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and we have 6 faces. Okay, so we will be having 6 more atoms across these faces. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so in total we will be having 14 number of atoms that will be part of a unit cell. Okay, so FCC unit cell. Okay, so till now I hope you have some information about this unit cell, cubic unit cell, crystal structure, and we have discussed here three mostly common unit cells, like this cubic unit cell, primitive cubic unit cell, this body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell. Okay, so next topic is defects in crystal. Okay, so as we read that crystal structure is orderly arrangement of particles. There will be orderly arrangement of particles. All the unit cell will be added and together, and they will be added together to form orderly arrangement, and that orderly arrangement is called क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यूनिट सेल बार बार रिपीट होंगे और रिपीट होके वो एडअप होंगे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होगा, ऑर्डर होगा उसका, एक मीन्स एक उसमें कोई डिफेक्ट, उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, वो एडअप होगा, एक सिमिट्री से दिखाई देगी आपको, है ना. ओके, सो दैट सिमिट्री इज कॉल्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट, वही आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा. अब वो ऑर्डरली अरेंजमेंट अगर आपका नहीं है, उसमें कुछ वेरिएशन दिखाई दे रही है, आपको देखने से ही लग रहा है कि वो इसमें एक सिमिट्री नहीं है, सो दैट देन वी विल came to conclusion that there is a defect in that crystal. Okay, so we are going to discuss some important defects inside that crystals. Okay, so under this category we have 4 types of basic defects. One is point defect, line defect, surface defect, volume defect. Okay, so first is point defect. पॉइंट इफेक्ट क्या होते हैं? पॉइंट इफेक्ट होते हैं जहाँ अब जैसे ये आपको सिमिट्री दिखाई दे रही है, एक देखो, अगर यहाँ पर एक एटम मिस नहीं होता तो हमें एक सिमिट्री होनी थी, बट दिस इज वी कैन सी हेयर एक एटम नहीं है यहाँ पर, सो क्लियरली वी कैन सी दैट there is a message, or there is a vacancy here, and we can easily see here that there is a lack of orderly arrangement here, there is a lack of symmetry here. Okay, so जब वो एक डिफेक्ट आपका एक पॉइंट पे आता है, सिंगल पॉइंट पे, एज पर मैथमेटिक टर्म्स वी हैव पॉइंट से पॉइंट्स को एडअप होकर हमारा एक लाइन बनती है, लाइन को एडअप बन के हमारा एक फेस बनता है, और एक फेसेस को एडअप होकर हमारा वॉल्यूम बनता है. तो वही हम डिफेक्ट्स में भी पढ़ने वाले हैं कि पॉइंट में की बात होगी तो हम पॉइंट इफेक्ट आएगा, अगर वो नंबर ऑफ पॉइंट्स में बन रहा है, आपका कोई डिफेक्ट बन रहा है, तो वो हमारा एक क्या बन जाएगा,
एक लाइन डिफेक्ट और एक नंबर ऑफ लाइंस में अगर साथ में आपका डिफेक्ट आ रहा है तो सरफेस डिफेक्ट हो जाएगा, और नंबर ऑफ सरफेसेस अगर आपका बन रहा है तो आपका वॉल्यूम डिफेक्ट आया। ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी होगी यहाँ पर, जैसे एक एटम मिस होगा, क्या पता कुछ ऐड हो जाए, जैसे यहाँ पर इंटरस्टिशियल है, यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर एक छोटा एटम ऐड हुआ है इंटरस्टिशियल साइड में, यहाँ पर इसने क्या किया है, एक सेम साइज़ का यहाँ पर एडअप हुआ है, इसने डिस्प्लेस किया है एक सिमेट्री को। सो एक यहाँ भी एक पॉइंट इफेक्ट है। सिमिलरली दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट इफेक्ट। ओके, सो दिस इज all about point effect. Next is line effect. As I told you earlier that when a number of point effects add together or come together, then we will be having line defect. line defect होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्रिस्टल था, बट अगर ये क्रिस्टल सिमेट्री होती तो सिंपल आपको 6 कॉलम ही दिखा देते थे, 1 2 3 4 5 6, बट as you can see there is an extra addition of line here, जिसमें आपके 3 एटम्स ऐड हुए हैं। अब ये 3 एटम हुए, देखने से अगर हम इसको सिंपल इजी को रखें, अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें तो एक ये इंटरस्टिशियल क्रिएट कर रहा है, बट ये क्योंकि एक लाइन नंबर ऑफ पॉइंट इफेक्ट्स एक साथ आए हैं तो ये हमारा क्या बन गया, एक लाइन इफेक्ट बन गया। ओके, सो एक जब डिफेक्ट आपका अक्रॉस द लाइन आ जाए तो हमारा लाइन डिफेक्ट हो गया। Okay, so line defect is here, we can summarize that there is a addition of extra line here, there is a addition of extra line here which is distorting the symmetry of the crystal, then we can conclude that we have line defect. Okay, so next defect is surface defect. As I told you earlier, when number of line defects came together or added together, then we can have defect in सरफेस। जब नंबर ऑफ़ लाइन डिफेक्ट हमारी ऐड हो जाएगी तो हमारा जो डिफेक्ट बनेगा, लाइंस बन के एक हमारी सरफेस बनाती है, तो उस सरफेस में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो हमारा सरफेस डिफेक्ट होगा। उसमें सरफेस डिफेक्ट हमारा मेन क्या होता है, एक ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो वी हैव 3 मेजर पोर्शंस है, 1 2 एंड 3। एक आपका देखो बिल्कुल आपका सिमेट्री है, अगर हम एक को स्टडी करें, अगर हम दूसरे को अलग से स्टडी करें तो आपका सिमेट्री है, थर्ड को हम स्टडी करें तो बिल्कुल से सिमेट्री है, बट व्हेन वी आर स्टडिंग देम टुगेदर वी कैन इजीली व्यू दैट देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन सिमेट्री। अब इनके ओरिएंटेड नहीं है आपस में, ये ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंटेशन देयर इज अ इनविजिबल बाउंड्री हियर एंड दैट बाउंड्री इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। ओके, सो ये जो आपके अलग अलग ओरिएंटेशन के क्रिस्टल बन चुके हैं, ये हमारे क्या, इन्हें हम क्या बोलेंगे, हम इन्हें ग्रेन कहेंगे। और जो इनविजिबल आपकी एक यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है, ये हमारा क्या हुआ, ग्रेन बाउंड्री। ओके, सो अंडर दिस सरफेस डिफेक्ट वी हैव ग्रेन्स एंड नंबर ऑफ ग्रेन्स विल बी हैविंग ग्रेन बाउंड्रीज। ओके, सो दिस ग्रेन बाउंड्रीज आर एक्चुअली डिफेक्ट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स डिस्टॉर्शन इन सिमेट्री, एक डिस्टॉर्शन दिखा रहा है सिमेट्री में। ओके, सो एक आपका बी जो फिगर है, ये आपका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाई दे रहा है किसी मेटल का। इसमें आप इजीली वी कैन इजीली व्यू दैट देयर आर नंबर ऑफ ग्रेन्स हियर, दिस ग्रेन 1 2 3 4 एंड these are having different orientation and we can see here we can easily see that these grains are separated by these grain boundaries। ये grain boundaries हैं जिससे सेपरेट हो रहे हैं आपके, बिकॉज इसकी ओरिएंटेशन इस क्रिस्टल की अलग होगी, इसकी अलग होगी। ओके, सो this was all about surface defect. Now is the last one was this volume defect. Okay, volume defect, under volume defect we can have voids आपका बीच से उसमें मटेरियल नहीं है, लाइक। Next topic is nucleation and growth transformation. Nucleation nucleation is the physical process by which new phase is produced in a material, and in case of solidification this refers to formation of tiny stable solid particles in liquid. Okay, so why this topic is important for
have a better understanding of heat treatment, because heat treatment basically the heating and solidification process. Okay, so we should have the basic idea what actually happens when liquid metal solidifies. Okay, so that process of solidification has some basic topics. Under that we have this nucleation and transformation. Okay, so जब लिक्विड मेटल एक सॉलिड बनता है तो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होती हैं, तो उसी मैकेनिज्म उन्हीं मैकेनिज्म और प्रोसेसेस को हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ का. ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट को समझने के लिए. ओके, न्यूक्लिएशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक लिक्विड है, सपोज जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम ऑन दिस फिगर, वी हैव लिक्विड विच इज़ pink in shade, which is pink in color. Okay, and we have a number of red dots. अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपका जो पिंक कलर्ड लिक्विड है ये अपॉन सॉलिडिफिकेशन, जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं कुछ एक पॉइंट्स पे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका लिक्विड सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जा रहा है. अभी नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे क्या बन गए, ये न्यूक्लियाई यहाँ ने हमें स्टेट कर दिया. न्यूक्लियाई क्यों बोल दिया हमने, क्योंकि यहीं से सॉलिडिफिकेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा. यही पॉइंट आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और टोटल आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी आर टर्मिंग दीज डॉट्स एज न्यूक्लियाई. क्या हमने बोल दिया है, इसे न्यूक्लियाई बोल दिया है. ओके, सो ये हमारे न्यूक्लिएशन साइट्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लिएशन साइट्स. अब विद टाइम अब क्या होगा, जैसे हमारा जैसे सॉलिडिफिकेशन होगी, हम टेम्परेचर अब यहाँ पर अब और कम करेंगे, सॉलिडिफिकेशन होगी, सो यही रेड डॉट्स जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, ये ग्रो करेंगे, ये आपका ग्रो करेगा. जैसे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, लेट्स टेक these two dots here, this one and this one. In next diagram B, these dots have taken us very considerable growth. Okay, they now cover very good amount here, and they are now solidified. Okay, so these two dots are no more dots, they cover some space, much bigger space as compared to figure A. Okay, so जैसे ए डायग्राम में छोटे छोटे डॉट थे, यहाँ पर क्या हो गए, बड़े हो गए, तो ये हमारा मतलब ज़्यादा यहाँ सॉलिडिफाई हो चुका है. तो ये प्रोसेस जिसमें आपकी न्यूक्लियाई आपका क्या कर रहा है, एक बड़ा एक सॉलिडिफिकेशन का एरिया कवर कर रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं ग्रेन फॉर्मेशन होना. यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है. ओके, इन नेक्स्ट डायग्राम सी, जब ये पूरी प्रोसेस हो गई फिर क्या होगा, आपका ये जो अभी आपका वैसे ये आपके क्या बन गए, ग्रेन्स बन गए. ये आपके सारे क्या है, सॉलिडिफाइड ग्रेन्स हैं आपकी. जैसे आपकी एग्जांपल हम लेट्स कंसिडर दिस टू एग्जांपल्स. ओके, दिस वन, लेट्स टेक दिस टू न्यूक्लियस स्पॉट्स, दिस वन एंड दिस वन. ओके, सो क्या हुआ एक्चुअली कि ये वाला जो स्पॉट था वो अब ये पूरा एरिया बन चुका है, यहाँ से लेके पूरा एरिया. ओके, ये रेडिश होना चाहिए था, बट लेट्स एज्यूम इट कि ये आपका सॉलिडिफाइड हो चुका है और एक ही ग्रेन बन चुका है. ओके, और दूसरा जो ये वाला आपका न्यूक्लिएशन साइट था, जो आपका ग्रोथ हो रही थी, जिसके ग्रेन बन रहे थे, वो अल्टीमेटली आपका ये ग्रेन बन चुका है. बिकॉज these two आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली. इसके अंदर क्या है, एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल से नंबर ऑफ यूनिट सेल एडअप हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका ग्रेन बन चुका है. बट इनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये आपकी क्या बन चुकी है, बीच में ग्रेन बाउंड्रीज. ओके, सो अपॉन सॉलिडिफिकेशन वी हैव नंबर ऑफ ग्रेन्स विच आर सेपरेटेड बाय नंबर ऑफ grain boundaries. Okay, so the process by which these two small dots they grow to form grains, and they further grow to form much bigger, much larger grains, is called grain growth. Okay, so that is our second topic under this nucleation and grain growth. That grain growth is what? It is a physical process by which new phase increases in size. In case of solidification, this refers to formation of stable solid particle as liquid phases. Okay, सो ये आपका क्या है, न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ. तो क्या होता है कि आपका लिक्विड मेटल क्या होता है, जब सॉलिडिफाई होता है तो इसी प्रोसेस से होता है, न्यूक्लिएशन साइट्स बनते हैं, फिर आपका वो ग्रेन बनने की कोशिश करता है, ग्रेन बनने से फिर आगे फर्दर फुल्ली ग्रेन बन जाता है और ग्रेन बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन. सो
So we have covered some basic topics which I felt that it is very important before going to heat treatment chapter, and by mistake if I have not covered other topics, I'll explain them side by sides. Thank you.